See, when we talk about any story or anything that you're writing in your psych test, okay, that is related to what? That is related to your unconscious mind. When we study mind, we divide mind into two parts, the conscious mind and the subconscious mind. Okay. When we study the subconscious mind further, we divide the subconscious mind into pre-conscious mind and unconscious mind. Okay. What is pre-conscious mind? Pre-conscious mind is that part of our mind which we can introspect and understand. Okay. जैसे मान लो वंश है, तो वंश को हमेशा ऐसा लगता है कि वंश इज अ वेरी फोकस्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन एक दिन वंश फुटबॉल खेल रहा होता है तो वो देखता है कि पूरे टाइम तो ही इज प्लेइंग ऑन द फील्ड बट हिज माइंड इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो वंश थिंक्स कि नो नो समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, then he thinks I usually get distracted when XYZ thing is happening in my life. Okay. Whatever we introspect and understand about ourselves is a part of what? Our pre-conscious mind. But there is one section of our mind which we cannot introspect and understand. Okay. Because that mind is kind of out of reach and we require certain tools to study it. Okay. इसको हम लोग क्या कहते हैं? We call this mind as unconscious mind. And no matter who you are, sometimes you yourself might not be able to understand things about you. One day when I was counseling a woman, so after that day I was sitting and making a list of 30 days breathing challenge kar kar. So on day one I had written that I matlab, you have to keep your hands on your chest and say that I feel safe to breathe. ऐसे कर कर, so I wrote 3-4 lines कर कर, I feel safe to breathe, I allow Shakti to come and breathe through me, ऐसे कर कर. So when I myself sat and tried it on myself and I kept hands on my chest and I said that I feel safe to breathe, I started crying badly. And I didn't know that time also why was I crying. Why was I crying? Because there was something related to the unconscious mind. Have you understood this? So when we talk about unconscious mind consists of certain information which are usually stored in the form of patterns. Okay, but for SSB and for normal purpose, we can study two things. Because TATs in the real psychological world is all about your hidden emotions and your hidden desires. Okay, so here we will study certain emotions and desires which are stored in our unconscious mind, which is visible from your TATs. Even though WAT is a projection test, but the way people write it in their SSB as sentences, it's not always projection. है ना? So when we talk about these emotions and desires, they are stored in our brain in the form of patterns. Okay. Patterns, what are patterns? Patterns are like codes. For example, if I select this eraser here, so only eraser will come, pencil will not come when I am selecting the eraser, right? Similarly, our unconscious mind is having certain preset patterns, and we all many times think that we are thinking, but in reality, we are only following those patterns. Okay. One of the best and my most favorite example about patterns is that there was once a person एंड वो ना बहुत तरह के नशे करता था, सिगरेट कर लिया, अल्कोहल कर लिया, ड्रग्स कर लिया, उसका मन नहीं भरा. So he started taking snakes poison in little amount every day. So he was addicted to snakes poison. One day he was traveling somewhere, he loses his briefcase in which injections are there and 2 snakes are there. Maybe he was going to give it to someone and he started feeling withdrawal. Withdrawal means जैसे if you smoke every day and if you don't get a cigarette, so the things that you will feel is known as withdrawal symptom. Whatever you are addicted to, you are not able to get that. जैसे फोन को छीन लेते हैं हम लोग, है ना, जितेंद्र के फोन को छीन कर रख लेते हैं, तो जितेंद्र को जो अंदर से इरिटेशन फील होगी, that is also a part of withdrawal symptom. Okay. So that person started feeling withdrawal and in 2 days he died. So the reason I find it very amusing is जब वो रोज जहर ले रहा था, he didn't die, but when he stopped taking the poison, he died. So our brain is addicted to our patterns so badly, है ना? Did you understand these patterns part? So we can get addicted to negative patterns also. So psychology में यही कहते हैं कि according to our patterns, we make certain choices. And these choices they determine our destiny, है ना?
और ये हम लोग अनकॉन्शियसली चूज करते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, वंश को लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट करने के लिए फिर से वंश को लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि वंश हैज ऑलवेज बीन टोल्ड यू आर नॉट गुड इनफ, ओके। तो वंश के ब्रेन का पैटर्न क्या होगा? यू आर नॉट गुड इनफ, ओके। अब वंश यहाँ पर दो लोगों से मिलता है, अनुराग से मिलता है, यहाँ पे चलो लड़कियों को ले लेते हैं, लेट से प्रीति से मिलता है, लेट से नीति से मिलता है। प्रीति टेल्स टू हिम यू आर नॉट, यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। प्रीति यू आर नॉट गुड इनफ नहीं कहना चाहती है वंश को, because of which my eraser was stopping me from doing that again and again. तो प्रीति वंश से कहती है यू आर नॉट गुड इनफ, बट नीति अनुराग से कहती है यू आर वेरी गुड, ठीक है। तो लॉजिकल चॉइस वंश का क्या होना चाहिए? नीति, बट वंश विल गो एंड वंश विल चूज प्रीति, ठीक है। वाई विल वंश चूज प्रीति? क्योंकि वंश के माइंड में पैटर्न यही है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, दिस इज वाई वी विल टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वंश रोज सुबह उठकर पराठा खाता है। आज भी लेट से वंश ने पराठा ही खाया, ठीक है, एंड वंश लाइक्स पराठाज ओनली। फिर वंश एक दिन बाहर जा रहा होता है, इसके सामने एक पराठे का शॉप है, एक इडली का शॉप है। तो वंश बिना सोचे समझे किस में घुस जाएगा? पराठे के शॉप में, because his brain is carrying that pattern only. Many times we say na, I like spicy food, I don't like spicy food, I like this restaurant's food, I like North Indian food, I like South Indian food. Why do we like something? Because our brain associates comfort with it. जितेंद्र ने बचपन में स्पाइसी फूड खाया होगा तो उसको स्पाइसी फूड कंफर्टेबल लगेगा, अनुराग ने स्वीट फूड खाया होगा तो उसको स्वीट फूड कंफर्टेबल लगेगा। सो मेनी टाइम्स आवर चॉइसेस आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट आवर comfort zone. Have you understood this? Today I was reading a book and I read one very nice line कि many times when people actually have soul connections, so those relationships fail very badly in the beginning, and for some cases they again join later on, for some cases they don't join later on। क्योंकि क्या होता है कि वंश को जैसे पराठे की आदत है, फिर वंश को एक इडली टाइप की लड़की मिलती है who is very good, and Vansh thinks कि I will have to become a person who has to leave paratha. So Vansh thinks अभी तो मुझसे नहीं होगा and he will leave. So many times when people actually meet someone they like and their soft side comes up, they run away from themselves only. पर चलो ये तो irrelevant था. Did you understand this part? Atul, I will send you that book's name. I did not see the cover. So I was telling, our patterns determine our choices determine our destiny. When we change our patterns, what happens is our choices change and then our destiny automatically changes. Okay? So now when we talk about these hidden emotions and hidden desires, we will first study hidden desires. When we talk about psychology and when we talk about a fixed personality, so there is no fixed personality. Some time back, I was telling you all that I used to think I have no determination, but I realized I have determination. And I know in 1 month I will do something which will show me I have no determination. So why this kind of fluctuation happens to us? This happens to us because of our hidden desires many times. Okay. So in psychology, after some time, we believe that a personality is not static, but a personality is very much fluid, and our personality changes according to our desires. ठीक है? जैसे let us take a person and let us talk about desire for achievement. ठीक है? So let's say there is a person who is having zero desire for achievement. So how will that person behave? That person will be very careless, very moody. If they are passionate about something, they might work a lot about on their passion. जैसे कुछ कुछ म्यूजिशियंस ये सब नहीं होते थे, घर पे पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हम अपने म्यूजिक में डूबे हुए हैं, because their mind was only in music. They were not thinking about the practical world and all. Are you able to understand desire for achievement? In one of the interviews long back, I had read in newspaper that Soha Ali Khan was telling
कुछ तो उनकी मूवी आई थी एंड शी वाज टेलिंग कि शी डज नॉट नीड मूवी फॉर मनी बट शी नीड्स मूवी व्हिच टेस्ट्स हर परफॉर्मेंस. Why she did not want money that time and more proving her performance? Because she was already having money at that point of time. So her desire was performance. And if you will see, Akshay Kumar initially used to do all kinds of movie. His priority was money at that point of time. So if our desire for achievement is zero and we are passionate, we only follow our passion or we become lazy, careless, nashedi, all these things. Have you understood this? किसी का 1 या 2 डिजायर फॉर अचीवमेंट हो गया, अब क्या होगा? दे विल मेक अ टू डू लिस्ट. दे विल टॉक अबाउट गेटिंग सक्सेस. दे माइट और माइट नॉट वर्क फॉर सक्सेस. किसी का नीड फॉर अचीवमेंट 5 हो गया, ठीक है, तो नीड फॉर अचीवमेंट 5 वाले लोग कैसे बिहेव करेंगे? ये लोग बहुत हार्ड वर्क करेंगे. दे विल स्लीप एट 12, वेक अप एट 4, दे विल पुश देमसेल्व्स एवरी डे. किसी का नीड फॉर अचीवमेंट, डिजायर फॉर अचीवमेंट 8 हो गया. व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल दे बिकम? ब्राइब देना स्टार्ट कर देंगे, धमकी देना स्टार्ट कर देंगे. 9 या 10 हो गया, कट थ्रोट बन जाएंगे. काफी पॉलिटिशियंस को देख लो, दूसरे को मरने मारने को क्यों तैयार हो जाते हैं? बिकॉज देयर डिजायर फॉर अचीवमेंट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. एंड यू विल सी सो मेनी पीपल who are different on day one and they become different after some point of time. Have you seen this? क्योंकि पर्सनालिटी स्टैटिक नहीं होती है. वी बिलीव कि जैसे जैसे नीड्स एंड डिजायर्स चेंज होता जाता है, तो जो अचीवमेंट का डिजायर, मतलब अचीवमेंट तो यहाँ पर एक टॉपिक है, वैसे वैसे पर्सनालिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज व्हाई यू ऑल विल रिमेंबर वन वेरी बेसिक रूल. यू विल नॉट राइट ऑल द स्टोरीज विथ ओनली वन डिजायर. ऑब्वियसली इट शोज लैक ऑफ आइडियाज, ऑब्वियसली इट शोज कि तुम एक ही कुएं के मेंढक हो, लेकिन इसके अलावा if I am only thinking about one thing, if 12 out of 12 stories are all about getting a job, clearing an exam, तो तुम यहाँ 9-10 वाले लोग बन जाओगे. Have you understood this? Who will use any means to get what you want? तो वैसे ही काफी डिजायर्स होते हैं, तो वो डिजायर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिजायर्स के 2 लेवल्स डिस्कस करेंगे. ऐसे 3 लेवल होता है. रियल में मैस्लोज हायरार्की पढ़ोगे तो 5 लेवल्स होता है. स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो 12 लेवल्स होता है. आई एम टीचिंग यू ऑल ओनली 3 लेवल्स. द फर्स्ट लेवल इज द लेवल ऑफ सर्वाइवल. सर्वाइवल में वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट सर्वाइविंग. सेकेंड लेवल होता है लीडरशिप का, और थर्ड लेवल होता है इनलाइटनमेंट का. रियल में ये सब डिवाइडेड होता है. आई एम समराइजिंग इट एंड टेलिंग यू ऑल लाइक दिस. व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल 2 तरह का होता है. फिजिकल सर्वाइवल होता है, इमोशनल सर्वाइवल होता है, ठीक है. सी, whenever we talk about survival, सर्वाइवल में लोगों का बिहेवियर कैसे होता है? दे कैन नॉट टेक रिस्क्स, ओके. दे आर नॉट ट्रू टू एनीवन. Yes, Vansh, all of this is about unconscious mind, है ना? There are many researchers who say that not even 1% of conscious mind is active at all times. There are a lot of researchers who say a lot of part of conscious mind is active, but most of our decisions and everything that we do is determined by our unconscious mind only. Abhi to we are also knowing that so many diseases are a part of unconscious mind. तो first let us talk about survival. Physical survival कैसा होता है? When someone is very poor, okay? If someone is very poor, they automatically get into a survival mode. When people are very poor, they are ready to do anything to meet their needs, है ना? जैसे तुम देखोगे इंडिया में वेस्ट स्कैवेंजिंग होता है. आज भी जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको उठाने के लिए भी लोग हो रहे होते हैं. Why is someone willing to do that kind of work? They are only willing to do that kind of work because of survival. Some days back, I think I had gone for some movie, और जो वहां पर वो women का washroom था, तो there was an old lady and every time one woman was coming out of the washroom, she was cleaning it with toilet paper and all. तो आई वॉज फीलिंग सो बैड लुकिंग एट हर ओनली. जो कर रहा होगा उसको भी तो थोड़ा बुरा लगता ही होगा, बट वाई इज एनीवन विलिंग टू डू इट? बिकॉज ऑफ सर्वाइवल ओनली. पीपल हु हैव द मीन्स of doing something else, will they choose these kinds of work? They will not choose these kinds of work, right? Why are people doing it? Because they can't afford to do something else, okay. When someone is very sick or someone is disabled, if you are physically disabled and you know that there are 9 out of 10 things you can't do, so can you take a lot of risks at that point of time?
You can't take a lot of risks at that time. You will be ready to settle for anything that you want to settle, है ना? फिर फिजिकल सर्वाइवल में चीजें आती है व्हेन वी आर इनकेपेबल और व्हेन वी आर अनस्किल्ड। ओके, जैसे पुराने टाइम में तुम लोग देखोगे, जस्ट सम डेज बैक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स कॉल्ड मी. That student is commissioned now, and we were just talking. I don't know why we were talking about divorce cases, but we were talking about divorce cases, and he was telling that, ma'am, these days women don't want to stay. But why did women stay in the old times? उनको पढ़ाते लिखाते नहीं थे, घर वाले बोल देते थे कि यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है, अब तुम्हारे हस्बैंड के घर से तुम्हारी चिता उठेगी एंड ऑल. तो they were not having any support. And when we don't have support, we are ready to settle for anything. But when we are standing on our feet, we are not ready. बच्चों को ही देख लो, पापा उनके मारते रहते हैं चार झापड़, बच्चे काम करने लगते हैं फिर झापड़ नहीं खाते. ऐसा होता है ना? मतलब ऑब्वियसली मारना इज अ बैड थिंग, नो डाउट. बट जब तक हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, जब तक हम लोगों के पास अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है, हम लोग मेंटली कैसे मोड में होते हैं? सर्वाइवल मोड में होते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस? फिजिकल सर्वाइवल तो फिर भी विजिबल होता है, इमोशनल सर्वाइवल विजिबल नहीं होता. बट दिस इज मच मोर टॉक्सिक कंपेयर टू फिजिकल सर्वाइवल. इमोशनल सर्वाइवल में सबसे पहले हमारी ना अपनी आइडेंटिटी नहीं होती. जब हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती तो हम लोग हमेशा दूसरों की बातों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए. एंड इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स लाइक दैट, देन पीपल कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट टू डू विद अस, राइट? तुम देखोगे कि अ पेरेंट लव्स देयर चाइल्ड सो मच दैट दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर चिल्ड्रन. लेकिन फिर भी तुम हरियाणा में देखोगे, इतना ऑनर किलिंग होता था, फीमेल फीटिसाइड हो रहा था. हरियाणा में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस है कंट्री में, है ना? वो लोग एनिमल्स को नहीं मारते, अपनी बेटियों को मार दिया करते थे. क्यों मार दिया करते थे? बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी सर्वाइवल रिलेटेड थिंग, है ना? और जब तक अगर कोई आदमी बहुत पुअर है और बहुत डिपेंडेंट है तो वो स्टैंड नहीं ले सकता. तुमको रिफॉर्म लाने के लिए या तो रिच होना पड़ता है या तो स्ट्रांग होना पड़ता है. तुम पुअर और वीक दोनों होकर रिफॉर्म्स नहीं ला सकते. इसलिए तुम देखोगे कि काफी जो मेन मेन रिफॉर्म्स आए हैं वो प्रोमिनेंट लोग लेकर आए हैं. क्योंकि जब नॉन प्रोमिनेंट लोग वो बातें बोलेंगे तो कोई उनकी बात सुनेगा ही नहीं. अगर एक बेगर आकर तुमको एक चेंज लाने को बोलेगा और एक कंट्री का पीएम आकर तुमको चेंज लाने को बोलेगा, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू लिसन टू द पीएम, यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू द बेगर, राइट? सेकेंड इमोशनल सर्वाइवल होता है व्हेन आवर लव्ड वन इज वेरी सिक और आवर लव्ड वन इज डाइंग. क्योंकि दुनिया में जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं उनको सफर करते हुए देखने से बड़ा दुख तो कुछ हो नहीं सकता. Recently भी I think there is one movie which has come, and उसमें अरशद वारसी is there, and then there is one more character about serial killing is there. तो वो लड़का लड़कियों को फंसाता था, फिर वन नाइट स्पेंड करने के बाद साइनाइड देकर मार दिया करता था. बट जब पुलिस उससे पूछ रही थी तो वो खुद से नहीं बता रहा था. जब उसकी वाइफ को मारने लगे तो उसने उगला सब कुछ, क्योंकि ही लव्ड हिज वाइफ अ लॉट. कैसा animalistic kind of प्यार है. but nevertheless he loved his wife so much that he still accepted his faults and all. क्योंकि मूवीज में भी तुमने देखा होगा कि हीरो को ब्लैकमेल करने के लिए विलन उसकी मम्मी और गर्लफ्रेंड को लेकर आता है हमेशा. बिकॉज सीइंग योर लव्ड वन सफरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्पलेसनेस दैट वी कैन गेट एज अ ह्यूमन, है ना? तो ऐसे हीरोज को नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसे हीरोज को तुम बनाओगे तो तुम्हारे हीरोज अच्छे नहीं बनेंगे. तुमने देखा होगा ना, एक डॉग होता है, डॉग को तुम रेस्क्यू भी कर कर ले आओ, लेकिन डॉग अगर बहुत रोड पर ऐसे रहा होता है कि उसको खाना नहीं मिल रहा, पीपल आर थ्रोइंग स्टोन्स, तो वो तुम्हारे घर में आकर भी रिसोर्स गैदरिंग करता है. कभी किसी ने देखा है ऐसा? आई हैव आउट ऑफ माई 3 dogs, वन डॉग इज रेस्क्यूड एंड शी केम वेरी वेरी लेट. उसका लिवर भी खराब है. सो शी स्टिल हैज दिस टेंडेंसी ऑफ रिसोर्स गैदरिंग, जबकि उसको हर समय खाना मिल जाता है, फिर भी शी गैदर्स रिसोर्सेज बिकॉज द ब्रेन इज स्टिल इन सर्वाइवल मोड. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये ना हम लोग ह्यूमंस के साथ भी होता है. और जब भी वी आर इन अ सर्वाइवल मोड, हमारा जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है, दैट इज टू सेव अस, है ना? बिकॉज ओनली व्हेन इट सेव्स अस इट विल कंटिन्यू आवर एग्जिस्टेंस. इसीलिए सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना क्राइम नहीं होता. और इसीलिए व्हेन समवन सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ वी कॉल इट सुप्रीम सैक्रिफाइस, है ना? क्योंकि वो अपने माइंड के अगेंस्ट जाकर चीजें कर रहे हैं, है ना?
तो जब भी ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है तो ब्रेन हमेशा फाइट बैक करता है। जैसे तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, यू आर हैविंग अ फ्रैक्चर्ड लेग, यू विल स्टिल रन। ओके, यू आर नॉट रनिंग फ्रॉम योर नॉर्मल बॉडी बट फ्रॉम द पावर और द स्ट्रेंथ ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना एड्रेनालाइन के बारे में, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस पढ़ा होगा, है ना, स्कूल में। सो जब हम लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है, जो जिस तरीके से एक्ट कर रहा होता है, उसको हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। ये हम थोड़ी देर में समझाएंगे। सर्वाइवल मोड को हम लोग अनसेफ मोड भी कहते हैं। जब भी हमारा ब्रेन अनसेफ फील करता है तो ब्रेन डज नॉट नो व्हाई इट इज फीलिंग अनसेफ टू बिगिन विथ, बट द ब्रेन विल स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू देयर डिफेंस मैकेनिज्म। Like I am a patient person, but my defense mechanism at times is irritation and anger. So every time my mind will feel unsafe, I'll behave angry. मान लो वंश का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वंश चुप हो जाता है, वंश कुछ नहीं बोलता। तो वंश को अगर स्ट्रेस आएगा तो वंश कैसे बिहेव करेगा? चुप। किसी का डिफेंस मैकेनिज्म फ्रीजिंग होता है तो हाथ पांव उनके ठंडे हो जाते हैं। किसी का बीपी लो हो जाता है ना। ऑटो इम्यून डिजीजेस भी बहुत ज्यादा सर्वाइवल मोड में रहने के कारण होता है। डिफेंस मैकेनिज्म तो तुम लोगों ने काफी वीडियोस में सुना होगा। आई थिंक एक नेवी वाले कोई जीटीओ नहीं है जिन्होंने शायद कोलकाता बोर्ड का जीटीओ बनाया था, ऐसे इंस्टा में आई थिंक आई सॉ हिम एंड ही वाज टेलिंग कि जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है वो बच्चों का दिख जाता है। देखा है किसी ने? मैंने देखा तो होगा ही, नाम नेम आई डोंट रिमेम्बर। सो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं वो वही होता है जब हम लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। और सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? लोग अपने चारों तरफ वॉल्स बनाकर रखते हैं कि वी डोंट वांट टू शो आवरसेल्व्स। अच्छा, वल्नरेबल। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा कोई ऐसे से तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे वंस आई आस्क्ड अ चाइल्ड व्हाई डिड यू नॉट क्लियर सीडीएस, तो वो खुद को डिफेंड करते हुए मेरे को बोलता है बट आई क्लियर्ड एफ कैट, बट आई क्लियर्ड सीजी कैट। वो ये नहीं बता रहा है क्यों नहीं हुआ सीडीएस क्लियर उससे, है ना। इसको हम लोग डिफेंसिव, यही डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता है, दिस इज वन पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कमिंग बैक, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड सर्वाइवल? तो तुम्हारा हीरो सर्वाइवल मोड में नहीं होना चाहिए। सी दिस इज व्हाई द आर्म फोर्सेस पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन योर बैकअप करियर। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई बैकअप ही नहीं रहेगा तो तुम ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चले जाओगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जिन बच्चों का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है ना, जैसे जितेंद्र सॉरी जितेंद्र, जितेंद्र के पापा जितेंद्र को बोलते हैं कि एक साल में जॉब नहीं ढूंढा तो वी विल थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस, या जितेंद्र के पापा इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हिम, मम्मी इज ऑल्सो स्कोल्डिंग हिम। तो जितेंद्र ना चाहते हुए भी वो जितनी मर्जी मेडिटेशन कर ले उसका माइंड हमेशा एंग्शियस रहेगा, क्योंकि द माइंड इज स्टिल इन सर्वाइवल, द माइंड इज स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन मार्क। हैव यू अंडरस्टूड सर्वाइवल मोड? तो अगर तुम लोगों में से कोई भी सर्वाइवल मोड में तुम्हें फील होता है कि हाँ मैं ऐसा रहता हूँ, मैं खुद पे फेथ नहीं करता हूँ, मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ वैलिडेशन के लिए या प्रेज के लिए, या इनमें से कुछ भी चीज फील होती है, तो फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम। कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो भगवान को सपोर्ट सिस्टम बना लो। दिस इज व्हाई यू सी इस्कॉन हैज सो मेनी फॉलोवर्स, सो मेनी पीपल आर एबल टू डू रिलीजियस कन्वर्जन्स इन अ नाइस मैनर, है ना, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सर्वाइवल में लोगों को रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती। सर्वाइवल में ना कोई किसी का सगा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल बट बिकॉज when your brain wants to survive first, it is not able to think about others. जैसे मान लो अगर तुम अपने कंधे पर एक डेड फिश रखे हुए हो, ठीक है, तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम भी लाकर दे दिया जाए तो वो डेड फिश का स्मेल चला जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक डेड फिश को उतार कर धोगे नहीं खुद को तब तक तो नहीं जाएगा। सो दिस इज व्हाट अ सर्वाइवल मोड इज। तुम अपनी बैड स्मेल में भरे रहते हो एंड दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते हो। हैव यू अंडरस्टूड सर्वाइवल मोड? तो काफी बच्चे होते हैं जो सेल्फिश नहीं होते हैं, बट तुम देखोगे उनका बिहेवियर देखकर लगता है कि दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। दे आर नॉट सेल्फिश इन रियलिटी, दे आर जस्ट इन सर्वाइवल। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
एक स्टोरी भी थी जो आई रेड इन अ न्यूज़पेपर लॉन्ग लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज अ किड। तो उसमें क्या होता है कि एक एडिटर होता है, एडिटर के घर पर काम चल रहा होता है, एंड देन देयर इज अ डेली वेज लेबर। तो वो जो डेली वेज लेबर होता है, ही इज हिटिंग हिज 12-year old सन एंड फोर्सिंग हिम टू ड्रिंक अल्कोहल toddy, but the child is telling, I don't want to drink. His father is hitting him more and forcing him to drink. So the editor goes and starts scolding the labor. So the labor replies that we don't have proper food, we don't have proper nutrition or rest time. If my son does the work without alcohol, his body will break, his soul will break. But if he is drunk, he will not even realize his body and soul is breaking. है ना? तो तुम देखोगे कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को ये वैसे धक्का मार दे रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। इट मेक्स ऑल ऑफ अस बिकम मॉन्स्टर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? काफी पॉलिटिशियंस को भी देखोगे, वो लोग पहले जेब कतरे वगैरह होते हैं फिर वो लोग कुछ मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो अब उनको पैसे तो मिल गए, लेकिन जो ब्रेन सर्वाइवल मोड में था वो ब्रेन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। अगर तुम लोग मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ोगे तो तुम देखोगे सर्वाइवल के बाद रिप्रोडक्शन ही आता है। तो तुम इसलिए भी देखोगे कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों में ही लगे रहते हैं, सेक्स, रेप। इनको जैसे ही थोड़ा पैसा मिलता है, इनका बस एक ही आइडियोलॉजी होता है, गेटिंग फिजिकल प्लेजर्स in terms of food, alcohol, गाड़ी, लड़की, all these things only. Did you understand survival mode? तो you will not make heroes who are in survival mode. बहुत गरीब heroes नहीं बनाओगे, sick heroes नहीं बनाओगे, incapable heroes नहीं बनाओगे, problematic heroes नहीं बनाओगे। तुम story लिख रहे हो, Ram applies for an exam, Ram failed in the exam, Ram fails all the time. Shyam comes and helps Ram. Is Ram in a survival mode mentally? Yes. ठीक है। तुम दूसरी स्टोरी लिखते हो कि राम wanted to go for mountaineering but his father never supports him, his father is always scolding him. Are you in an emotional survival mode? Yes, you are in an emotional survival mode. फिर तुम तीसरी स्टोरी लिखते हो जिसमें एक पिक्चर है जिसमें लड़की खिड़की से अंदर आ रही है। तुम लिखते हो कि Ram failed in the exam. Ram did not want to face anyone. Ram locked himself in the room. Are you in a survival mode? Yes, you are in an emotional survival mode. Is this clear to everyone? तो सर्वाइवल मोड की चीजें नहीं लिखनी है लाइफ में। अगर तुम लोगों में से कभी किसी को फील हो कि तुम लोग सर्वाइवल मोड में हो, तो वर्क करो खुद पर, क्योंकि ऑल दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, है ना? वो सिर्फ थॉट चेंज करने से चेंज नहीं हो जाता। हाँ दर्पण। मैम अगर हम ऐसा दिखाते हैं कि ह्यूमन हेल्पिंग समबडी, तो कहीं वो ऐसा तो नहीं लगेगा कि दैट आर शैडो पर्सनालिटी इज इन सर्वाइवल मोड? शैडो पर्सनालिटी तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है दर्पण। ओके। जैसे आपने शुरू में बताया था कि देखो पिक्चर में डिपेंड करता है। इफ द पिक्चर शोज समथिंग, जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि कोई किसी बेगर को मनी दे रहा है, तुमने बेगर लिख दिया तो दैट इज नॉट योर शैडो पर्सनालिटी। लेकिन उसकी क्वालिटीज जरूर तुम्हारी शैडो पर्सनालिटी रहेंगी। जैसे when I used to go to my college, तो हम एक beggar को देखा करते थे who was very lively, and I used to take 2 lunch boxes. I used to give him one. तो वो ऐसे बहुत bless करता था and all. तो as long as I am writing peaceful things for him, that is my shadow personality. और देखो ये मैच भी कैसे होता है। अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले जब हम ये ऑप्टिकल इल्यूजन की चीज बता रहे थे, तो आई टोल्ड कि मेरे को येलो दिख रहा था। तो वही चीज आ रही है, एनर्जी, क्यूरियोसिटी, वार्मथ, ऐसे वाली। तो चीजें क्या होती है दर्पण, कंसिस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं होता है कि एक पिक्चर में तुम्हारी पर्सनालिटी एक आ जाती है, दूसरी पिक्चर में तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ और आ जाती है। सेम ही रहता है दर्पण यूजुअली। ठीक है। हम लोग लाइवली होते हैं तो दूसरे हमको लाइवली दिखते हैं, हम लोग खराब होते हैं तो हम लोगों को और खराब खराब लोग मिलते हैं। और दूसरी चीज दर्पण, एक बेगर ऐसी भी थी जिसने मेरे को धक्का दे दिया था व्हेन आई टोल्ड हर कि व्हाई डोंट यू वर्क। But Darpan, if I am holding on to those kinds of emotions, that will make me bitter towards people. So this is why we don't write all these things also. Because sometimes you may would have had like some bad experiences, but if you are only thinking of your bad experiences, you become a bitter person. तो इसलिए वो चीजें नहीं लिखते हैं दर्पण। बट वट एवर द पिक्चर शोज इज नॉट क्लियर पर्सनैलिटी। पिक्चर में चोर है, तुमने चोर लिख दिया तो दैट इज नॉट योर पर्सनैलिटी। पिक्चर में एक आदमी फोन स्क्रॉल कर रहा है, तुम लिख रहे हो कि चोर आ गया उसके पीछे, दैट इज योर पर्सनैलिटी। दिस विल शो फियर।
इनसिक्योरिटी होती है ना, मेरी चीजें कोई छीन लेगा। जैसे दर्पण, यू वांटेड टू गो टू अ स्कूल, योर ब्रदर वांटेड टू गो टू अ स्कूल, पेरेंट्स के पास एक ही को भेजने का पैसा था, वो 90% लाता था, तुम 60% लाते थे, उन्होंने उसको भेज दिया। तुम बड़े होते होते सोचने लगते हो कि अरे मुझसे ये भी छिन गया तो वो भी छिन गया तो सब छिन गया, तो दैट इज द शैडो पर्सनालिटी देयर। ये नहीं कि थीफ लिख दिया मतलब मैं थीफ हूँ, ठीक है? अच्छा। अंडरस्टूड। फिर आता है लीडरशिप। लीडरशिप के दो पैरामीटर्स होते हैं, बट फॉर एसएसबी आई विल टेल यू अ थर्ड वन आल्सो। ऐसे रियल डेफिनेशन में थर्ड नहीं आता है, थर्ड आई एम ओनली टेलिंग यू ऑल। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो लीडरशिप का जब फर्स्ट पैरामीटर हम लोग देखते हैं तो अ लीडर इज ऑलवेज विजनरी इन नेचर, और अ लीडर इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, और अ लीडर इज ऑलवेज प्रोडक्टिव। देखो, अगर इंसान के पास पर्पस नहीं हो तो उनके लाइफ में क्या ही है? सुबह उठना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, सो जाना है, एक दिन मर जाना है। तुम्हारा तो कुछ पर्पस ही नहीं बचा। तो एज अ लीडर यू नीड टू बी अ पर्सन हु इज प्रोडक्टिव इन नेचर, हु इज हैविंग सम स्मॉल स्मॉल गोल्स फॉर हिमसेल्फ, हु इज डूइंग सम थिंग्स। तो हर स्टोरी में तुम्हारा हीरो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, नो वन फॉलोज अ पर्सन, people follow the vision of the person. See, why did people follow महात्मा गांधी? जैसे तुम देखोगे कि महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे भगत सिंह एंड ऑल बचपन में, लेकिन जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था तो फिर रिवोल्यूशनरीज अलग से आ गए। क्यों आ गए थे? बिकॉज ऑफ द विजन। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हुज विजन्स डिड नॉट मैच। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? We don't follow a person. When Mahatma Gandhi would have called Indians for freedom, people did not follow Mahatma Gandhi. People followed the idea of freedom that they wanted. Have you understood this? तो लोग तुमको क्या सेल कर रहे होते हैं? आइडियाज सेल कर रहे होते हैं। व्हेन इंडियन आर्मी सेज डू यू हैव इट इन यू, तो हु विल वांट टू प्रूव? जिनमें वो एडवेंचरस नेचर होगा, दे वुड वांट टू प्रूव दैट यस वी हैव इट इन अस। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे नहीं नहीं वी डोंट। अगर मेरे से कोई पूछता है डू यू हैव समथिंग इन यू, या अगर वंश मेरे को बोलेगा इफ आई हैव टू डू अ पुल अप, जो अभी मेरे से ऑब्वियसली नहीं होता है, मे बी 1 मंथ में हो जाए, तो वंश मेरे से बोलेगा मैम यू कांट डू अ पुल अप, तो आई विल लुक एट वंश एंड आई विल से ओके देन आई विल गो एंड डू व्हाट आई कैन डू। तो दीज काइंड्स ऑफ पीपल विल नॉट बी एक्साइटेड टू डू दैट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ ना बहुत नेगेटिव बच्चे होते हैं, उनसे पूछोगे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी, बोलेंगे हमको कंट्री के लिए मरना है, क्योंकि उनको लाइफ में जीना है नहीं। अब उनको एक नोबल कॉज मिल गया है कि फोर्सेस ज्वाइन करेंगे तो कंट्री के लिए मरेंगे। तो पेसिमिस्टिक नेचर से तो यू कांट बी लाइक दिस ना। व्हाई आर यू नॉट सेइंग दैट आई विल डू समथिंग फॉर माय कंट्री, आई विल फाइट फॉर माय कंट्री? दे वांट टू डाई फॉर देयर कंट्री। उनका विजन ही है कि मरना ही है हमें, चलो किसी अच्छी चीज के लिए मर जाते हैं, है ना? काफी वीक लोग बहुत महान दिखने की कोशिश ज्यादा करते हैं काफी बार, है ना? वो लोग बहुत जस्टिफाई करेंगे अपने एक्शंस को ग्रेटनेस से। विजन्स के बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन देखो, यहाँ पर भी लीडरशिप में तुम लोगों को एक बात याद रखनी है कि किसी भी चीज में ना बहुत ही आइडियलिस्टिक नहीं हो जाना है। जैसे इवन इफ वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी अगेन, yes, Gokul. So even when we talk about Mahatma Gandhi again, see, a lot of people started disliking him. There is one incident where Mahatma Gandhi had told to women that women should also not fight. If someone is trying to come and do something wrong to women, they should bite their tongue and die. See, if he is non-violent, let him believe in non-violence. Why will he tell people that die and don't do violence? Why will he tell that do violence to yourself but not to others? So what happens when we get too idealistic? किसी ने पूछा था ना कि मैम, लास्ट क्लास में somebody asked me ना कि idealistic क्यों नहीं होना है, and I told कि I'll tell it later. Who asked? So basically, idealistic इसीलिए नहीं होना है because when we are too idealistic, what happens is we become extremely stupid. We become extremely weird, है ना? All the very idealistic people, terrorists क्या होते हैं? बहुत idealistic होते हैं, है ना? मैं हूं ना में सुनील शेट्टी क्या था? बहुत idealistic. शौर्य मूवी में ब्रिगेडियर प्रताप इज व्हाट? वेरी आइडियलिस्टिक। तो वेरी आइडियलिस्टिक नहीं होना है, ठीक है? किसी भी चीज के लिए नहीं होना है बिकॉज वेरी आइडियलिस्टिक पीपल दे बिकम अ लाइबिलिटी ओनली लेटर ऑन। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडर को हमेशा दूसरों की तरफ रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अगेन महात्मा गांधी, मेरे को सिर्फ महात्मा गांधी का ही एग्जाम्पल्स आता है। सो व्हेन महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका,
So he did not only fight for himself, he fought for so many other people. है ना? So this is why they chose him as a leader, because he was responsible towards others as well. Have you understood the sense of responsibility part here? तो हमेशा pictures को देखकर क्या सोचोगे? If I were there, what is a productive or responsible thing that I would do? Please don't tell me these things. मेरे पापा मेरे को ब्रीफ केस में चॉकलेट्स देते हैं, मम्मी कटोरी में बिरयानी देती है, मैं खाकर रख लेता हूँ, मैम मैं यही स्टोरी लिखूंगा. प्लीज डू नॉट राइट ऑल दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज. ओके, डू समथिंग प्रोडक्टिव, डू समथिंग रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि तुम कितने क्यूट हो ये दिखाने के लिए तो तुम अपनी एसएसबी में जा नहीं रहे हो. So don't write those kinds of things. No, people actually write very very weird things. और उसके बाद कुछ लोगों का तो एटीट्यूड ही बहुत अजीब रहता है. Once one girl had written a story. वो पिक्चर है ना जिसमें लड़की खिड़की से अंदर जा रही है और लड़का है अंदर. एंड दैट गर्ल हैड रिटन कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, फोन नहीं उठा रहा है, तो वो खिड़की से चली गई. तो आई टोल्ड दिस इज अ वेरी obnoxious स्टोरी, तो मेरे से आर्ग्यू करने लगी. एंड देन आई टोल्ड हर यू आर स्टूपिड और व्हाट. देन शी गॉट एक्सट्रीमली एंग्री विथ मी. बट डोंट राइट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. है ना? इतने महान लोग तुम लोगों में से तो कोई ऐसा नहीं है जो इतना ऑब्नॉक्शियस कंटेंट लिखकर फिर बोलेगा नो नो मैम मैं यही करता हूँ, मैं यही लिखूंगा. फिर मैं रिकमेंड होकर आपको दूसरे नंबर से मैसेज करके भी बताऊंगा आपने बोला था कि मैं नहीं होऊंगा. मैं हो गया. So be goal oriented, be responsible, and the third thing that you have to remember, whenever family is shown, whenever friends are shown, always show a positive bonding between people. Never write family related problems, never write friends related problems. कभी अगर कोई fight वगैरह दिखे भी तो you should write about concern, you should write about care towards the other person. And जैसे my father is angry because he is concerned about me, not because he's a bad father or I did something very bad. Have you understood this? कभी खराब रिलेशनशिप्स नहीं दिखाना, ये होता है लीडरशिप. लीडरशिप के भी ऊपर आता है इनलाइटनमेंट. इनलाइटनमेंट में क्या होता है? वी डोंट केयर अबाउट गुड, वी डोंट केयर अबाउट बैड. हमको बहुत फ्री रहना है, हम किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते. वी वांट टू डू व्हाट वी वांट टू डू. We don't want to belong to anything. We don't want to belong to anyone. We have crossed all the boundaries. My country's soldier is a human, other country's soldier is also a human, everyone is a human. किसी ने मेरा गला दबा दिया तो भी उसका हाथ में भगवान है. All these things, they are the stages of enlightenment. एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों में होती है, when people are in a survival mode, they try to pretend themselves to be enlightened, that we don't care about anything, but ऐसा होता नहीं है ना? काफी लोगों को देखोगे, people who can't earn, they will say we don't want money. इसीलिए many times it is said कि people who achieve a lot in their lives वो फिर बाद में जाकर enlightened बन जाते हैं. और काफी लोग, maybe their version of spirituality is different from our version of spirituality, but you see everyone, Albert Einstein, स्टीफन हॉकिंग, स्टीव जॉब्स, उन सब का एक एनलाइटेंड साइड था. क्यों? क्योंकि उनके ना बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल्ड हो चुके थे. जब तक ये फुलफिल नहीं होते तब तक वी कांट रियली बिकम एनलाइटेंड, क्योंकि हमारा माइंड इन्हीं स्मॉल स्मॉल डिजायर्स में अटका ही रहता है ना? इसीलिए इवन व्हेन वी स्टडी स्पिरिचुअलिटी, जो रूट चक्रा होता है, तो रूट चक्रा सबसे पहले लोगों को फाइनेंसेस ही देता है. आई डोंट नो कौन ये स्पिरिचुअलिटी करता है जो बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी फॉलो करोगे तो कर्मास बहुत जल्दी बर्न होंगे, यू विल सफर अ लॉट एंड ऑल. बट प्रॉपरली फॉलो करोगे तो रूट चक्रा जब भी हम लोगों का एक्टिवेट होता है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मनी, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ वेल्थ. क्योंकि वेल्थ ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे मेडिटेट करोगे? हाउ विल यू बी केयर फ्री टू सिट एंड ब्रीथ? तो इनलाइटनमेंट का कंटेंट नहीं लिखना है. डोंट राइट स्टोरीज वेयर राम अर्नड 25,000, ही डोनेटेड 30,000. राम को दो गुंडों ने पीटा, फिर भी राम ने उनके इलाज के लिए पैसे दे दिए. प्लीज डू नॉट राइट ऑल दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हम लोग थोड़ा नीड्स और डिस्कस करते हैं. देर आर मल्टीपल नीड्स, आई एम ओनली टेलिंग यू ऑल 3-4 नीड्स. नीड फॉर अचीवमेंट हम लोगों ने देख ही लिया, है ना? सो डोंट राइट ऑल स्टोरीज ऑफ अचीवमेंट ओनली. डोंट राइट स्टोरीज हर स्टोरी में एग्जाम क्लियर कर रहे हो, यू आर गेटिंग अ जॉब एंड ऑल. प्लीज डू नॉट राइट ओनली दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज. ओके?
Like I have told many times, if you want to write good stories, develop knowledge, read about things, read about various professions, get exposure of things. सेकंड आता है नीड फॉर एफिलिएशन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर इसको ले लो नीड फॉर बॉन्डिंग. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एबिलिटी टू बॉन्ड एंड द नीड for bonding with others. What is the ability to bond that we are become friend? जितेंद्र पानी पी लो तुम जाकर. We are able to become friends with someone easily is ability to bond, but need for bonding क्या होती है? We need to bond with others. When we need to bond with others, we become certified doormats, है ना? जो मर्जी हो हमारे साथ कर लो. We will always be needy and there. You will look at a lot of people who are people pleasers, very bad people pleasers. They are stuck at bad places. In my class, there was a girl, she was very, very pretty. उसका boyfriend था very, very ugly, very, very disgusting. Again, I am not very judgmental. But one day one student had messaged me कि मैम I can do face reading. आपके face को देखकर लगता है कि आपको चुगली करने में बहुत मजा. So in my class, there was a very pretty girl dating a very ugly and disgusting boy. वो ugly and disgusting सिर्फ देखने से नहीं था. क्या पता वो मेरे को भी करना है, सोचता हूँ. What he used to do was he used to keep chewing गुटखा all the time and he would spit here and there, है ना. गंदा सा दिखता था. गंदे से बात देख कर लगेगा कि कितना ड्रंकार्ड के टाइप आया है. He was very thin. तो वो झूलता रहता था. So, but still, that pretty girl was his girlfriend. So, because I tend to feel very curious about all these kinds of things, when our semester exams were going on, तो मेरा पेपर भी हो गया था, उसका पेपर भी हो गया था. So I went to her so that I could get some, nice tea about that boy. So I went to her and I was so surprised to know that ugly and disgusting boy had blocked her. And that boy told her that you are not good enough for me. That boy used to show her ऐसी छपी models का photos and tell her that I deserve a model kind of girlfriend. When I was listening to all these things, obviously I was extremely shocked. Then that girl was telling कि कविता प्लीज मैसेज हिम फ्रॉम योर फेसबुक मैसेंजर. उस टाइम तो इंस्टा था नहीं, तो फेसबुक पे उसको मैसेज कर दो बिकॉज उसने तो उसको ब्लॉक करके रखा है दैट शी इज नॉट एबल टू ईट और ड्रिंक विदाउट यू. उसने मेरे को पैसे भी दिए थे टू ऑफर टू गॉड फॉर दैट बॉय. But me and my friend had eaten Manchurian and noodles out of that money, not given to the temple. But later she became a good friend of mine. She knows that we ate noodles of that money. So then I came to know that both of her parents were working. So both of her parents were working. So her need for bonding was what? More. क्योंकि मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं. There is no one at home. She was the only child, lived in a nuclear family. There was no servant in the house because her parents were very protective about a girl child also. They would not let her go outside too much. They would not let her hang out with friends and all too much. So when she met that boy, so all the need for bonding fell on that boy. है ना? So इसको हम लोग trauma bonding कहते हैं वैसे, but this is how people get trapped in honey trap cases and all. Because see, they are away from their family, their need for bonding is high. Many times they might be coming from a family where there was a lot of struggle also. Again, it makes your need for bonding very high because it is not only about working parents. Sometimes your parents will be present but not present still. Then they are not having any friends. Seniors are also very good to them sometimes. So their need for bonding increases so much that even when their mind is telling that this person is wrong. तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी रिलेशनशिप में द माइंड इज टेलिंग दिस पर्सन इज रॉन्ग, पर तुम उनको प्लीज प्लीज बोलकर पैसे ही भेजे? One of my students used to give half money to his girlfriend, but that girlfriend was having another boyfriend. फिर उसके रूममेट ने समझाया कि शी इज वियरिंग नाइकी एयर शूज एंड यू आर वियरिंग 200 रुपए के चप्पल. उसी के पैसों से
वैसे तो ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, मीन्स बॉयज विल डू दिस टू इमोशनल गर्ल्स, बट लड़कों के साथ भी हो ही जाता है। सो हैव यू अंडरस्टूड नीड फॉर एफिलिएशन? नीड फॉर एफिलिएशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? इंडियन आर्मी बहुत सारे पोस्टर्स लगा देगी, उसके बाद फिर वनिता पे बच जाओगे। सो दिस इज व्हाई, if any one of you tends to feel very lonely, if any one of you is like a doormat, please stop doing that. Start respecting yourself, start appreciating yourself, start being there for yourself, so that your need for affiliation does not increase so much that you become a doormat. Have you understood need for affiliation? Need for affiliation के लिए you all will remember where family is not visible, do not write a story on family. कुछ बच्चे कैसे स्टोरी लिखेंगे? पिक्चर नंबर 1, soldier is visible. They will write Major Ram of 9 para SF is missing his family. Second picture, Ram, an IAS officer, is missing his family. Gets a call from his sister. Picture में कुछ है ही नहीं family, but they are only writing family, love, friends. Did you understand need for affiliation? तुम लोगों में से तो कोई ऐसा नहीं है। डोरमैट टाइप। दर्पण तुम हो ऐसे? नो, नहीं होना अच्छा होता है। देन कम्स नीड फॉर रिकॉग्निशन। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे वंश। So let's say Vansh scored 95%, दर्पण scored 60%. वंश के पापा उसको बोलते हैं 95%। I had scored 98%. तुम्हें मैंने 2 कोचिंग लगवा कर रखा है। You are going to a premier school. Still you scored only 95%. तो वंश को क्या फील होगा? There is no appreciation. One day, one girl who had got recommended twice and then merit out was telling me that, ma'am, I have lost all motivation in my life. I'm not feeling self motivated to prepare for the third attempt. Why? Because even when she's getting success, it is still feeling bad to her after getting merit out. तो WATs में जैसे एसोसिएशन आता है, सक्सेस इज स्टिल पेनफुल, है ना? तो देन द ब्रेन और द हार्ट डज नॉट फील मोटिवेटेड टू वर्क। तो तुम देखोगे काफी बच्चे होते हैं, 10th 95%, 12th 95%, पेरेंट्स विल टेल 98% तो नहीं आया, वो ग्रेजुएशन में 50% लेकर आते हैं, बिकॉज दे आर लाइक 98% लाकर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना? तो ऐसे लोग बाहर से कैसे बन जाते हैं? वी डोंट केयर, वट एवर यू वॉन्ट टू से अबाउट अस यू से, बट अंदर से वो क्या चाहते हैं? दैट पीपल शुड रिकॉग्नाइज अस, पीपल शुड वैल्यू अस। तुम उनकी थोड़ी सी तारीफ करोगे, दे विल स्टार्ट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। नीड फॉर एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल फ्रेडी मूवी भी था ना, कार्तिक आर्यन का, where he was a dentist. One girl makes him her boyfriend and makes him commit a murder. तो खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को वैल्यू करो। प्लीज डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रिकॉग्निशन फॉर समवन टू on someone else. Did you understand need for recognition? Need for recognition वाले बच्चे हर स्टोरी में appreciation सीख करते हैं। The hero was appreciated, someone came and thanked hero, क्योंकि उनके माइंड को appreciation ही चाहिए। Have you understood this? लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, है ना, जैसे मान लो दर्पण को सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, दर्पण इकलौता बच्चा था घर का, एप्पल ऑफ द आईज। तो दर्पण की हम लोग तारीफ करेंगे काम करवाने के लिए, एंड वी विल से दर्पण तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, कर दो ना। तो दर्पण सोचेगा इंटेलिजेंट हूँ इसीलिए तो नहीं कर रहा। If I was not intelligent, I would have done that for you. So they will not care too much about praises and everything. Have you understood this? So please do not write stories where the hero wants an award badly, wants to be appreciated badly, wants to be thanked badly. Is this clear to everyone? फिर आता है नीड फॉर क्रिएटिविटी। नीड फॉर क्रिएटिविटी इज अ वेरी गुड थिंग, इनोवेशन इज वेरी गुड थिंग, बट व्हेन वी आर इनोवेटिंग टू मच वी रिक्वायर फ्रीडम। ओके, यू कांट रिमेन इन द बॉक्स ऑलवेज एंड देन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ऐसे लोग कभी कभी दे आर नॉट वेरी गुड टू बिकम गुड सबॉर्डिनेट्स if they are too free by nature. जैसे scientists काफी बार, है ना, maybe APJ Abdul Kalam would have been like this. He might be having a very innovative mind, है ना? Have you understood this thing?
Don't write stories like this. Rahul went to the park. He saw a green leaf. Green leaf में caterpillar था. He observed the caterpillar for 30 minutes. Then he came back home. It was a happy day. These kinds of people cannot become good subordinates. वो free होते हैं teacher से. Did you understand this thing? तो बहुत ज्यादा इस तरह का कंटेंट मत लिखो. नीड फॉर मनी का कंटेंट भी ज्यादा नहीं लिखते. डू नॉट राइट स्टोरीज ऑन मनी एंड ऑल. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये था नीड्स का. डू नॉट राइट रिपीटेटिव स्टोरीज, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में इट विल ऑल्सो शो लैक ऑफ आइडियाज, लैक ऑफ इंटेलिजेंस. प्लीज गैदर नॉलेज, गैदर इंफॉर्मेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 to 25 प्रोफेशंस. पिक्चर्स को देखो, प्रोफेशन सर्च करो, इंस्टेंसेस सर्च करो, डेवलप योर नॉलेज. ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट राइटिंग गुड कंटेंट. जितेंद्र, और पानी पी लो, खड़े होकर क्लास अटेंड कर लो. आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतना नींद आ रहा है? इतना सारा पानी लेकर बैठा है ये. रेड वाटर ड्राउनिंग इन द रेड सी. जितेंद्र, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड डिजायर्स? हिडन इमोशंस आज पढ़ना है. So now we discuss desires. Now we will discuss emotions. See, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस होता है टू इंश्योर आवर सर्वाइवल. तुम नाले में गिर गए हो, योर अनकॉन्शियस माइंड फील्स कि नाला ही इसके लिए सही है, वो तुमको नाले पे ही रखेगा एंड इट विल मेक यू सर्वाइव लाइक दैट, है ना. जैसे तुम देखोगे कुछ लोग बहुत ड्रिंक करके नाले वाले में गिर जाते हैं, तुम उनको अच्छा खाना दोगे तो तुम पे गुस्सा करने लगेंगे, बोलेंगे नहीं हमें ड्रिंक ही करना है, हमें नाले में ही गिरना है जाकर. बिकॉज दैट इज देयर पैटर्न and that is how their brain feels that survival is there. Are you able to understand this? After one of these defense mechanism classes, एक स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड मेरे को कॉल कर करके बोलने लगी कि मैम मेरे बॉयफ्रेंड का डिफेंस मैकेनिज्म ये है, तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. So what happens to all of us is whenever we face any kind of stress, देखो, these are not our natural behaviors, okay, and we don't really know a person unless and until we have seen their behavior under pressure. स्ट्रेस है, प्रेशर है, ठीक है, any kind of hidden desire. Why hidden desire? Because hidden desire questions our identity in our mind. Okay, if we want to be free, someone does not let us be free, our mind will always be in chaos. So all these three kinds of things, they cause stress in the brain. Okay, when stress is prolonged, it becomes anxiety. So the brain also fights back this anxiety because the brain wants to stay in inertia and survive. The method the brain uses to fight the stress is known as defense mechanism. Have you understood this? Defense mechanism टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. ऐसा नहीं होता है कि फिक्स्ड होता है, ठीक है. इट कैन चेंज. जैसे तुमने देखा होगा, ये डायलॉग तुम लोगों ने सुना है कि किसी और को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही बंद कर दे एंड पीपल स्टार्ट फाइटिंग, है ना. तो शुरू में उनका डिफेंस मैकेनिज्म क्या था? दे वर स्कैर्ड 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 स्कैर्ड, फ्रीजिंग फ्रीजिंग फ्रीजिंग, फाइट. ओके, सो डिफेंस मैकेनिज्म्स कैन चेंज एज वेल. क्योंकि ये पैटर्न के फॉर्म में रहते हैं, ये बहुत डीप रूटेड होते हैं हमारे ब्रेन में. बट रिमेंबर, देयर इज नथिंग मोर पावरफुल इन दिस वर्ल्ड than emotions. Emotions have the power to break and recreate defense mechanisms in microseconds also. Okay, so सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अर्ली मैन ले लेते हैं, अर्ली वुमन ले लेते हैं. So there was an early man, there was an early woman. They both went for hunting and gathering. Suddenly a very big wild animal came in front of them. ठीक है, this was the first kind of stress that the human would have got. और हमारे ancestors का information हम लोगों में present रहता है. So what would have happened is that they were having two choices. The first choice was to fight. The second choice was to flight. That means run away from that problem. So these are the two most primitive behaviors present in a human. Okay, remember यहाँ पर fight का मतलब ये भी होता है. Vansh was there. He sees a dinosaur.
So Vansh thinks, how will I handle a dinosaur myself? He goes to his tribe. He brings back 80 people. They all fight the dinosaur. This is also fight. Okay. Vansh chala gaya, so he is having flight. Nahi. Flight means not dealing with the problem. Fight means dealing with the problem. Are you able to understand this? फाइट का पॉजिटिव साइड होता है डिटर्मिनेशन. बिना फाइट के देयर इज नो ऑफिसर. एस्ट्रोलॉजी में फाइट होता है मार्स. तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि जिसका मार्स खराब होता है उसको यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज वाले जॉब नहीं मिलते, है ना. मार्स थोड़ा अच्छा होना ही चाहिए फॉर एनीवन टू बी इन द फोर्सेस और पुलिस सर्विसेज और समथिंग. सैटर्न से भी मिलता है डिफेंस सर्विसेज का जॉब, लेकिन फिर भी मार्स अच्छा होना चाहिए, है ना. मार्स या फिर फाइट का पॉजिटिव साइड क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है. ठीक है. रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेन यू आर वर्किंग आउट, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वॉइस इन योर हार्ट व्हिच सेज लेट अस डू मोर. दिस इज आल्सो फाइट. ओके. You failed in 4 attempts. There is a voice inside you which says one more time. What is this? Fight. Are you able to understand this? Fight ke bina there is no officer. In my experience, I have seen only people with fight defense mechanism are actually able to get rid of their problems completely. Fight वाले लोगों को बहुत cases में medicines की भी जरूरत नहीं पड़ती because they are willing to deal with their problems. ठीक है. Fight का positive side होता है determination, negative side होता है controlling behavior, dominating nature, बहुत ज्यादा restless होना, बहुत ज्यादा anxious होना. ठीक है. एंग्शियस इज अ रॉन्ग वर्ड हियर. रेस्टलेस होना, डोमिनेटिंग होना, कंट्रोलिंग होना, लड़ना, बहुत इम्पल्सिव हो जाना. वैसे भी तुम देखोगे कि मार्स डोमिनेटिंग पीपल, तुम लोगों में से भी किसी का 9, 18, 27 ऐसे डेट ऑफ बर्थ होगा या चार्ट में मार्स प्रोमिनेंट होगा. जब मार्स प्रोमिनेंट हाउसेस में प्रेजेंट होता है तो उनको ही एस्ट्रोलॉजी में मांगलिक कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत एनर्जी होता है. If the energy is positive, it is determination. If the energy is negative, ऐसे लोग कैसे होते हैं? कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, तुमको चैन से जीने ही नहीं देंगे. वो बोलेंगे दर्पण व्हाइट शर्ट क्यों पहना तुमने, मैंने बोला था ब्लैक पहनना, तुमने व्हाइट कैसे पहना. इस बात पे ही दर्पण को वो पीट देगी पकड़कर. सो दिस इज फाइट डिफेंस मैकेनिज्म और द प्रीडोमिनेंस ऑफ मार्स इन एनीवन्स चार्ट. अभी यहाँ पर ना साइकोलॉजी में दो तरह के साइकोलॉजिस्ट आते हैं. फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट विल टेल यू, इफ यू आर फीलिंग एंगर, गो एंड टेक इट आउट ऑन द पिलो, गो एंड टेक इट आउट ऑन द बॉक्सिंग बैग और समथिंग. तुम लोगों ने सुना होगा ना, इमोशंस अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल दो. But then there's a second kind of research which suggests that people who actually go and hit the boxing bag, they are training their unconscious mind. Anger means hit, so they are also more likely to hit the people in reality also. So actually, if any one of you is having Mars or fight defense mechanism, what you should do is, when you feel very angry, sit and do deep breathing. जितने fight dominated लोग हैं, they all should practice deep breathing on an everyday basis. So this channelizes your energy and this makes you victorious eventually. Are you able to understand the fight defense mechanism? Please remember, there is no officer, there is no leader without fight defense mechanism. Fight is very much required because fight के बिना क्या courage होगा, क्या problem solving ability होगी. Fight is very much required. किसी को life में feel हो कि fight नहीं है तुम में, कलर थेरेपी में रेड कलर की चीजें पास में रखना हेल्प करता है. आंखें बंद करके वॉरियर पे मेडिटेट करना हेल्प करता है. इन माय एक्सपीरियंस, व्हेन आई चैंट काली माज मंत्र, इट आल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. For Devis also, it is said that three kinds of Devis are there, and not three kinds, multiple Devis are there, but Devi का जो three forms होता है, Kali Ma is known as Kriya Shakti, Lakshmi Ma is known as Ichha Shakti or the desire, Saraswati Ma is known as Gyan Shakti, wisdom. So it is said that because she is Kriya Shakti or the courage, sorry, the energy to do things, so meditating on her helps a lot in developing fight defense mechanism. तो तुम लोगों को लगे ना कि मुझसे नहीं हो रहा, प्रॉब्लम डील नहीं कर पा रहा, मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, तो अपने आप को एनकरेज करो फाइट करने के लिए. रिलीजियस हो तो यू कैन विजुअलाइज गॉडेस काली और चैंट हर बेसिक मंत्र, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फाइटिंग पावर. हैव यू अंडरस्टूड फाइट डिफेंस मैकेनिज्म? कोई एसआरटी है जिसमें 4 चोर आ गया,
तुम चोर को डिस्ट्रैक्ट कर कर जाकर 10 लोगों को गैदर कर कर लाते हो, फिर पुलिस के पास लेकर जाते हो, दिस इज ऑल्सो फाइट, दिस इज नॉट फ्लाइट। चोर आ गया, तुमने अपना सामान दे दिया पर कंप्लेन किया बाद में, दिस इज ऑल्सो फाइट, दिस इज नॉट फ्लाइट। इज दिस क्लियर? पैनिक करके लड़ना इज स्ट्रेस, इट इज नॉट फाइट। Fight is what? When we are fighting, we know how to win. We are not fighting anywhere and everywhere just for the sake of it. Did you understand fight? फिर आता है फ्लाइट। ओके, फ्लाइट का मतलब होता है प्रॉब्लम से भाग जाना। अगेन यू कैन कंसिडर इट नेगेटिव राहु इन योर एस्ट्रोलॉजी। फ्लाइट वाले लोग जो होते हैं, दे आर हैविंग अ वेरी गुड एनालिटिकल स्किल, ओके, लेकिन दे आर नॉट वेरी गुड पीपल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस और फॉर अ लॉट ऑफ करियर्स। पॉलिटिशियंस अच्छे बन सकते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट्स अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज देयर माइंड इज हाइपर फंक्शनल। फ्लाइट के नेगेटिव चीजें क्या क्या आती है? दैट दे टेंड टू लाई अ लॉट। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स देखते रहेंगे, मैस्टरबेट करने लगते हैं बहुत लोग, बहुत स्मोक करना, ड्रिंक करना, बेसिकली डूइंग एनी एक्टिविटी टू अवॉइड योर प्रॉब्लम इज व्हाट? फ्लाइट। Some people tend to daydream a lot. Daydreaming is also what? Flight. Overthinking is also flight. जो फ्लाइट डिफेंस मैकेनिज्म वाले लोग होते हैं, इनको बहुत प्रेशर डाल दो तो इनको फ्यूचर में हैल्यूसिनेशंस डेवलप हो जाता है। तो हैल्यूसिनेशंस एंड स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत बैकग्राउंड रूट देखोगे तो फ्लाइट डिफेंस मैकेनिज्म होता है। खुद के मेंटल हेल्थ के लिए फ्लाइट डिफेंस मैकेनिज्म इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव। इफ एनी वन ऑफ यू टेंड्स टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू फेस द प्रॉब्लम, टॉक टू योरसेल्फ, है ना। Let's say you don't want to deal with a problem, you tell yourself, we will deal with it tomorrow, we will deal with it in this manner. But do not escape the problems, physical or mental. Are you able to understand flight? समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है? तो फ्लाइट अच्छा नहीं होता। तुम लोगों में से कोई भी अगर डे ड्रीम वगैरह करता है प्रेजेंट को इल्यूड करने के लिए, इनका स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, साइकोटिक डिसऑर्डर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। देन व्हाट हैपेंड? द वुमन गॉट प्रेग्नेंट। ओके, तुम लोग देखोगे द होल वर्ल्ड वाज वर्शिपिंग द फेमिनिन इन द बिगिनिंग, है ना। Even when we talk about the Vedas, the Rig Ved talks about the women. I don't know, कुछ पंडित आते हैं जो बोलते हैं ऋग्वेद में women नहीं है, but there is Shri Suktam, Vak Suktam, Ratri Suktam in Rigved only. In other cultures also you will see that they were worshipping women. जो oldest temple है वर्ल्ड का, गोपिकली टेपे, टर्की का है, 14,000 years old पुराना है। तो उसमें भी कोई वुमन का इमेज मिला था। तुम देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफी विमेन को विचक्राफ्ट एंड ऑल के नाम पर जलाया गया है, बट विमेन वर वर्शिप्ड इन द बिगिनिंग। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब विमेन को बोलने लगे कि चेहरा मत दिखाओ, बोलो मत, जमीन पर बैठो, और भी क्या क्या है ना। Why did this develop? Because when a woman got pregnant, so the male told her that you go inside the house. I will give you food, I will give you shelter. Okay? तो क्या होता है कि when we start getting a lot of resources, when we start getting a lot of help, so a third kind of behavior develops in us, which is known as freezing. Because freezing came first in women, all women innately have it. तुम देखोगे आफ्टर सम टाइम किसी को बहुत फोर्स करो तो वो फ्रीजिंग में ही चले जाते हैं। फ्रीजिंग वाले लोग कैसे होते हैं? दे विल गेट कंफ्यूज्ड व्हेन प्रॉब्लम कम्स, देयर palms and their feet will start getting cold when problem comes. They can't think, they will not be able to react. E- Even if they don't eat, their belly will have a lot of fat. Because what the brain does is, when the brain is in survival, कोई एक दिन क्लास में नहीं बोल रहा था कि मैम मुझे स्वीट खाने का बहुत मन करता है, तो आई हैड टोल्ड कि एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर रिलेटेड होता है, साइकोलॉजिकली व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड आउट द ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी, तो ब्रेन मीठा ढूंढता है खाने को, है ना। सो ऐसे लोग क्या होता है कि ये लोग खाना नहीं भी खाएंगे तो भी इनका बेली बल्ज रहेगा, बल्जिंग रहेगा, और इनमें ना बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा होने लगेगा विदाउट ईटिंग ऑल्सो। Even there are a lot of people who are working out a lot and still can't lose weight. It happens because of the freezing defense mechanism. Freezing fight के साथ थोड़ा मिल जाता है तो functional freezing बन जाता है, जिसमें people will make to-do list but execute नहीं कर पाएंगे। एग्जाम होगा, चादर डालकर सोए रहेंगे,
So freezing is a defense mechanism which is related to astrologically Saturn. फ्रीजिंग डिफेंस मैकेनिज्म वाले कहीं नहीं लाइफ में कुछ भी कर पाते, रिलेशनशिप्स हो, कोई भी और करियर हो, क्योंकि ये लोग प्रॉब्लम में फ्रीज हो जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू. सो अगर तुम लोगों में से किसी को भी फ्रीजिंग फील होता है तो कंपेल योर बॉडी टू मूव एट दैट टाइम. जैसे अगर दर्पण को पता है कि आई हैव फ्रीजिंग, तो स्ट्रेस फील हो, सोने का मन करे, डोंट गो एंड स्लीप, गो एंड स्टार्ट वॉकिंग आउटसाइड. एस्ट्रोलॉजिकली भी सैटर्न की एक रेमेडी होती है कि मार्स को अच्छा कर लो, मूव करना स्टार्ट कर दो तो फ्रीजिंग या सैटर्न अच्छा हो जाता है चार्ट में. हैव यू अंडरस्टूड द फ्रीजिंग पार्ट? कुछ बच्चे होते हैं पीपीटीटी में मुंह नहीं खोल पाते, क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? फ्रीजिंग के कारण. स्टोरीज लिख रहे हैं, राम फेल्ड इन द एग्जाम, श्याम केम एंड मोटिवेटेड हिम. व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो फ्रीजिंग. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फ्रीजिंग वाले लोग लीडर्स बन सकते हैं? नहीं, तो फ्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है. फिर होता है, फिर बहुत सारे बिहेवियर्स है. एक होता है फॉनिंग, जिसको कहते हैं पीपल प्लीजिंग, है ना. पीपल प्लीजिंग में क्या होता है कि whoever is behaving bad with you, you will try to please them only. You will see a lot of people जो उनके साथ बदतमीजी करता है उनको उससे ही प्यार हो जाता है, क्योंकि brain has learned only this kind of love. Maybe their parents behaved badly with them. इसको हम लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम भी कहते हैं. अगर तुम लोगों ने हाईवे मूवी देखी थी, किसी ने हाईवे मूवी के बाद ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की बहुत बातें आ रही थी. सो पीपल प्लीजिंग इज रिलेटेड टू स्टॉकहोम सिंड्रोम. एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? दर्पण कहता है अपनी मम्मी से, मम्मी आई वांट अ फुटबॉल. तो दर्पण की मम्मी उसको डांट देती है. फिर दर्पण की मम्मी बोलती है यू कम फर्स्ट इन द क्लास, आई विल गेट यू अ फुटबॉल. दर्पण कम्स फर्स्ट, देन हिज मदर स्कोल्ड्स हिम, फुटबॉल फुटबॉल करता रहता है, जा पढ़ ले. So Darpan decides, I never want a football. I will never ask anyone for anything in my life. तुम देखोगे ऐसे लोग होते हैं, एक कॉल का जवाब नहीं तो वो जिंदगी में तुमसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज देयर ब्रेन इज स्टक इन रिएक्शन फॉर्मेशन, है ना. फिर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन में क्या होता है? दे विल स्टार्ट मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम्स, सो दैट काफी बार व्हेन द अपब्रिंगिंग हैज बीन अनस्टेबल, तो बच्चे क्या करते हैं कि दे ऑलवेज इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो सो दैट दे कैन नो हाउ टू नेविगेट थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस. तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे ये पिक्चर आ गया, इस पिक्चर में इसके किडनी को भी फेल कर देंगे, हार्ट को भी फेल कर देंगे, हार्ट को फेल कर देंगे, फिर लिखेंगे ये डोनेशन के लिए हार्ट लेकर गए बट हार्ट डिड नॉट वर्क. ये लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को बहुत मैग्नीफाई कर देंगे. एक प्रॉब्लम लिख देंगे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर 500 किलोमीटर दूर रहता है, डॉक्टर ही नहीं है आसपास. व्हाट आर दे डूइंग? मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम. कोई और अगर पिक्चर ले, ये पिक्चर ले लिया, पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दे देंगे कैंसर. व्हाट आर दे डूइंग? मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम. उनकी लाइफ में हर चीज मैग्नीफाइड ही रहती है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो देयर आर plenty ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स. वी विल नॉट डिस्कस ऑल डिफेंस मैकेनिज्म्स टुडे. किसी को अगर जानना हो तो आई विल टेल लेटर. We will discuss some defense mechanisms tomorrow. I was telling you all, remember one thing कि defense mechanisms can be changed. ठीक है. डिफेंस मैकेनिज्म एक टाइम पर एक से ज्यादा भी हो सकता है. टाइम चेंज होते होते डिफेंस मैकेनिज्म भी हम लोगों का चेंज हो जाता है. एज अ चाइल्ड आई हैड डेवलप्ड फाइट, देन आई डेवलप्ड फ्रीजिंग. अभी भी मेरे को लगता है मेरा मोस्टली फ्रीजिंग ही है, बट मेरा वेट खा कर है बिना खाए नहीं है. सो तुम लोगों में से भी किसी का हो सकता है. डिफेंस मैकेनिज्म को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है. जैसे मान लो अगर योर डिफेंस मैकेनिज्म, मेरे को कोई अपना डिफेंस मैकेनिज्म बताओ, हम बताते हैं कैसे चेंज करते हैं. रिएक्शन फॉर्मेशन. अच्छा, सो लेट्स से वंश बोलता है खुद को. सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है? एक्नॉलेज करना होता है. जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, एक्सेप्ट इट. ओके, लेट्स से माई बिहेवियर इज रिएक्शन फॉर्मेशन. ठीक है. अब जब सबसे पहले एक्नॉलेज कर लिया, तो एक्नॉलेज करने के बाद क्या करो? ब्रेन को उसका रीजंस दो. ठीक है. लेट्स से नाउ आई एम ओनली अज्यूमिंग, आई डोंट नो हिज रियल रीजन. सो लेट्स से द रीजन इज कि व्हेनेवर आई वांटेड समथिंग,
someone did not treat me very well, okay, or I was not given that particular kind of thing, जो भी तुम्हारा reason है, ठीक है. So tell your brain the reason. The third thing that you have to do is you have to do a comparison, ठीक है. अभी comparison में क्या करो, या तो compare करो या again इसका एक logic दो, ठीक है. जैसे let's say Vansh wanted a toy, his father did not get him a toy because he was always working. तो फिर वंश अब यहाँ पर अपने आप को लॉजिक में क्या देगा कि the only reason he could not get me a toy was because he was not having time for it, or let's say he was not having maturity to do it. But a lot of people do a lot of things in immaturity. अब हम लोग compare करेंगे. For example, when I went to buy a doll from XYZ shop, the shopkeeper behaved like this. Okay, Anurag, you compare it with something else. ओके, एनी अदर सिनेरियो. जैसे मान लो कि तुम्हारे साथ एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया, मे बी यू वेंट टू अ शॉप, यू ऑर्डर्ड नूडल्स देयर, द नूडल्स टेस्टेड बैड. इसका मतलब क्या, तुम जिंदगी में कभी नूडल्स नहीं खाओगे? खाते हैं ना. तो यू कंपेयर थिंग्स, जो भी तुम्हारे लाइफ का कुछ भी एग्जाम्पल वगैरह हो, सो यू कंपेयर इट विथ XYZ things which are happening, and then tell your brain how do you want to act or how do you want to believe. तो ये खुद को बार बार बोलते रहो, तो फिर ऑटोमेटिकली जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है वो चेंज हो जाता है. फॉर सम पीपल हु आर वेरी गलिबल या बहुत ओपन एंडेड होते हैं, उनका 2-3 डेज में भी चेंज हो जाता है, किसी का 30-40 डेज में चेंज हो जाता है. यूजुअली इट इज सेड दैट इट रिक्वायर्स 100 days टू चेंज द पैटर्न. फास्ट अगर किसी चीज को करना है तो फोकस एक्सरसाइज करो, और फोकस एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेन को जो भी बोलोगे वो बहुत फास्ट वर्क करता है ब्रेन के ऊपर. सो यू कैन चेंज योर डिफेंस मैकेनिज्म्स लाइक दिस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट convenient methods which you can do to yourself also. Always compare, okay, because the brain is thinking something, it's not happening in reality. The brain is only thinking that it is happening. जब तुम लोग उसको दूसरे इंस्टेंस से कंपेयर करोगे तो ब्रेन अंडरस्टैंड्स कि ओ दिस इज नॉट रियल. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो अपने ब्रेन को खुद से थोड़ा समझाओ. डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू वांट टू डू फॉर इम्प्रूविंग योर विल पावर, योर फोकस, योर मेडिटेशन. जब लाइफ में विल पावर बहुत कम लगे तो यू कैन प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी, बिकॉज शी इज द इच्छा शक्ति. तुम्हारा कोई भी फ्रेंड कभी बहुत डिप्रेस्ड हो या सुइसाइडल हो तो आस्क देम टू प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी. एंड कभी भी माइंड बहुत क्लाउडेड हो तो पीपल प्रे टू गॉडेस सरस्वती फॉर विजडम. लीविंग दैट, डिड यू अंडरस्टैंड द डिफेंस मैकेनिज्म्स? आर्ग्यूमेंटेटिव लोग क्यों हो जाते हैं? जब एसएसबी में कोई भी असेसर कहता है कि XYZ कैंडिडेट इज डिफेंसिव, ओके, डिफेंसिव लोग क्यों होते हैं? No one protected them when they needed to be protected. एक बच्चा था, I think 2019 या 20, when I was taking his feedback, तो उसको कुछ भी बोलो ना वो पलट कर कुछ बोल ही रहा था. तो after 3 things I got irritated and I scolded him badly. फिर वो थोड़ा रुका और मेरे को बोला कि मैम, my father was an athlete and all, my brother is also an athlete, but I am a very weak person. जिसके कारण my brother and my father never used to take me anywhere. So I decided I need no one. I am powerful on my own. तो वो बच्चे ने क्या किया? No one supported him. तो उसने अपना दीवार खुद बनाया. He said, I don't need anyone. I am strong here. So he made it so that he could protect himself at that point of time. But now also he was defensive for no reason. So you need to let these walls down so that you're not defensive. When people are saying something bad, that doesn't mean they are targeting you or fighting you only. Have you understood this? या your are you told you कि weight क्यों नहीं lose किया या exam क्यों नहीं clear किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि they are telling you कि तुम capable नहीं हो. They are only asking you कि क्यों नहीं किया. Now that's it. Now Jitendra can go and sleep. So अच्छा अमन. So I will see you all tomorrow. Good night.